Hello guys, welcome back. Till now we have solved 31 questions of chapter 2 from DK World book. Okay, now I'm going to start the 32nd question. Okay, 32nd A part and 32nd B part it includes. Okay, so in the 32A part, children, what is that question given? First I'm reading that question. Okay, afterwards I'm explaining how we solve it. See, the question is A, B, C and D partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:2:1:1. They decided to share future profits and losses in the ratio of 3:2:2:3. For this purpose, goodwill of the firm valued at 1,50,000. There was also a reserve of rupees 60,000 in the books of the firm. Okay, so children, look at this. Goodwill is given and as well as reserves are also given. Now see further what information are given. Find out sacrificing ratio, gaining ratio and past necessary journal entry assuming that reserve is not to be distributed. Okay, means here we will not distribute reserves in the partners capital account, will not in the old ratio, will not distribute it. Okay, so how will solve it? First I am writing down what are the information given in the question. See, look at this. Actually there are four partners A, B, C and D. Okay, the old ratios are given and the new ratios are given. Okay, so see, in the old ratio 2:2:1:1, like that. In the new ratios are 3:2:2:3, and we will talk about the shares 2/6, 2/6, 1/6 and 1/6. Like that, here we will see 3/10, 2/10, 2/10 and 3/10 as well. Okay, so this is what actually we have certain information about this. Okay, now we'll have to find out which partner will sacrifice and which partner will gain it. See, we'll find out sacrifice or gain. We subtract it. 2/6 minus 1, 3/10. That will be 30. 10 minus 9, 1/30. So he will sacrifice. Now we will talk about 2/6 minus 2/10. LCM will be 30 again. 10 minus 6, 4/30. We will also sacrifice. Now talk about C. 1/6 minus 2/10. LCM will be 30. 5 minus 6. Minus 1/30. Minus represent gain. Okay, I already told you, but minus sign will not take it afterwards. Okay, here also 1/6 minus 3/10. LCM will be 30. 5 minus 9 minus 4/30. Okay, so this is what we have calculated sacrifice and the gaining part. Okay, now we'll talk about the goodwill. Goodwill is given in the question, that is 1,50,000. Okay, 1,50,000 the goodwill given, and we'll talk about the reserves. Reserves are 6,000, 60,000. Okay, this is what the information we have, children. Okay, so we'll add them. 2,10,000. ओके, हमें जो है गुडविल और रिजर्व वाले अमाउंट को बेटा ऐड करना होता है. ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने गुडविल और रिजर्व के अमाउंट को ऐड किया है. उसके बाद ही मैं सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग पार्ट निकालूंगा. देखिए यहाँ पर, तो एज सैक्रिफाइस कितना आ रहा है? 1/30 आ रहा है. 1/30 इंटू 2,10,000. We'll see that 7,000 we have to find out. Like that, B sacrifice, it was 4/30. So that will be 28,000. Like that, C is gain and B is gain. Okay, accordingly we'll find out because it contains how much here? 1/30. 1/30 we have already calculated, that is 7,000, and that will be 4/30, that will be 28,000. Okay, now we'll find out the single entry of this. Okay, we have to find out the journal entry. So see the journal entry, what will be journal entry will be passed over here.
See, general entry will pass. Here particulars I am writing. Okay, as you know that the journal entry will pass over here. Gaining partner to sacrificing partner capital bond. The gaining partner, two partners are there. They are gaining. So C is capital account debit. B is capital account debit. 2A is capital account. 2B is capital account. और छोटी सी नरेशन लिखनी है इसके अंदर कि बीइंग रिजर्व एंड गुडविल आर एडजस्टेड या डायरेक्टली आप आर वाला लिख करके भी तो देखिए यहाँ पे सी की अमाउंट जो हमने निकाली है वो कितनी निकाली है 7,000 की निकाली है और इसी 28,000 की निकाली है। इसी से ए का जो सैक्रिफाइस था वो था 7,000 और ये भी था 28,000। इस तरह से हमारी जो एंट्री पास हो जाएगी बेटा, ये जनरल एंट्री से पास होती है। ओके, सो like that children, see the next question number 32 over here. Okay, in the 32 question children, Arun and Varun were in a partnership sharing profit in the ratio 2:3. They fact from 1st May 2016 they agreed to share profit in the ratio 1:2. Okay, for this purpose the goodwill of the firm to be valued at 2 years of purchase of the average profit of last 3 years, which were 1,50,000, 1,40,000, 2,20,000 respectively. Reserves appear in the books at 1,10,000. Partners do not want to distribute the reserves. You are required to give effect to the change by passing a single journal entry. Okay, see, first of all we have to evaluate goodwill over here. Okay, by using the average profit method. So look at this, how we'll do it. So they are Arun and Varun are partners, so that's why we have to erase everything else. So see, Arun and Varun, these are partners. Old ratio and the new ratios are given. Old ratio is 2:3 and the new ratio is 1:2. We'll talk about the share 2/5, 3/5, 1/3, 2/3. We'll calculate now children, sacrifice again because we will use it. So 2/5 minus 1/3. Also we'll take 15 will there. 6 minus 5. 1/15. I will see 3/5 minus 2/3. 15. 9 minus 10 minus 1/15. Okay, it will gain. Afterwards, we will be having the information about the profit of different years. See, the profits of the years are given respectively. First of all, that 1,50,000 year का नेम नहीं है. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के प्रॉफिट दिए हुए हैं. देखिए 1,50,000 का प्रॉफिट है फर्स्ट ईयर में. सेकेंड ईयर में जो प्रॉफिट है 1,40,000 है और 2,20,000. ओके, अब यहाँ पे हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं कि एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, इन सबको ऐड कर लेते हैं. 1,50,000 प्लस 1,40,000 प्लस 2,20,000 अपॉन 3, 2,90,000, 3,10,000, 5,10,000. इसे डिवाइड करेंगे 1,70,000. This is the average profit. Now let's find out the goodwill. Average profit into number of years purchase. तो एवरेज प्रॉफिट है 1,70,000 और जो गुडविल है वो है हमारे पास बेटा जी कितने ईयर के लिए परचेज करके 2 ईयर के लिए परचेज करके है. तो ये 3,40,000 आपका जो है बेटा जी गुडविल आ जाएगा. और रिजर्व कुछ में गिवन है हमें वो है
1,10,000। इसके अलावा कुछ में क्या बोला हुआ है, कब हम रिजर्व को जो है इसके अंदर ऐड करते हैं, इसमें लिखा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट टू चेंज बाय पासिंग अ जनरल एंट्री इफ पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते हैं, तब हम गुडविल अमाउंट में इसको ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने, तो 4,50,000 का आपके पास ये अमाउंट आ गया है, और इसी के बेस्ड जो है हम सैक्रिफाइसिंग नोट की एंट्री करेंगे। देखिए यहाँ पे वर्किंग नोट को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए वर्किंग नोट ही चल रहा है हमारा पूरा अभी तक फिलहाल, ये पूरा वर्किंग नोट चल रहा है। इसके बाद जनरल एंट्री पास करेंगे। देखिए तो हमारा जो है अरुण्स सैक्रिफाइस शेयर इन द गुडविल, ठीक है। तो 1/15 ही आएगा दोनों का। देखिए 4,50,000 इंटू 1/15 डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पे आएगा आपका 30,000। ओके, ये 30,000 जो है हमारे पास अरुण का शेयर आ गया। इसी तरीके से वरुण का भी गेन जो होगा, वरुण गेन वो भी हमारे पास 30,000 आएगा, क्योंकि वो भी 1/15 है, ठीक है। इसका जनरल एंट्री पास करते हैं। जनरल एंट्री, तो जनरल एंट्री आपको पता है कि क्या होती है, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सो लुक एट दिस, गेनिंग पार्टनर कौन है, वरुण कर रहा है, तो वरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अरुण कैपिटल, being reserves and goodwill adjusted, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 30,000, दोनों में 30,000 अमाउंट में डाल दिया है। देखिए ठीक है, ये अमाउंट हमारे पास आ गया निकल करके। देखिए ओके, अब नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 33 चिल्ड्रन। ओके, इन 33 क्वेश्चन देयर आर XYZ partners and the balance sheet is given over here. Okay, here we have to pass some journal entries and we have to also record the change in the by preparing the revised balance sheet. इसमें हमें revised balance sheet भी बनानी है, ठीक है। और ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो देखिएगा कि किस तरह से सर कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको करना होगा। देखिए फिर दिस क्वेश्चन नंबर 33, ओके। पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखना है हमें, ठीक है, कि हमें जो है क्या क्या गिवन है। देखिए बेटा इसमें ओल्ड रेशियो है हमें गिवन 7:5:4 XYZ का, ठीक है। ध्यान दे देता हूँ मैं उठा करके, XYZ का 7:5:4 हमारे को ओल्ड रेशियो गिवन है। तो 7/15, 5/15 एंड 4/15, ओके। 16 आएगा, 16 आएगा इनका सम। देखिए 16, 7/16, 5/16 एंड 4/16। तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो आ गया, ओल्ड शेयर भी निकल गया। देखिए आगे चलते हैं। बैलेंस शीट में क्या क्या गिवन है हमें। बैलेंस शीट में बेटा कैपिटल अकाउंट गिवन है XYZ के, जनरल रिजर्व गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है, ओके, और सन्ड्री एसेट्स गिवन है। अब देखिए नीचे लाइन क्या लिखी हुई है, लिखा पार्टनर्स डिसाइडेड दैट विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ओके, फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म, मतलब इसके अंदर हमें न्यू रेशियो दिया है। देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको हम NPSR बोल रहे हैं, ठीक है ना। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गिवन है 3:2:1। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं 3/6, 2/6 और 1/6। ओके, अब यहाँ हम निकालते हैं इनका सेक्रीफाइस और गेन निकालते हैं। यहाँ पे देखते हैं 7/16 में से 3/6 माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 5/16 में से 2/6 माइनस करेंगे और 4/16 में से 1/6 माइनस करेंगे। तो ऐसे समझ आएगा। यहाँ पे देखिए आपका 48, 16 3 48, 3 7 21, 6 8 24 माइनस 3/48, ठीक है। इसको कैंसिल मत करिएगा, इसे ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करते देखिए 48 LCM, 3 5 15, 16 माइनस 1/48, तो ये भी गेन कर रहा है। देखिए यहाँ देख लेते हैं लास्ट वाला,
48, 3 4 या 12, 8 4/48। तो ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ये ध्यान रखिएगा, सेक्रीफाइस और गेन का सम इक्वल होना चाहिए। सेक्रीफाइस का सम करेंगे 4 आ रहा है, देखिए 3 + 1 4, तो उसके इक्वल आ रहा है। ओके, so see children over here how actually we'll do now. You look at this, we have to find out the sacrificing and gaining ratio. We have calculated over here. Now we have to check कि जो हमारे जनरल रिजर्व क्वेश्चन में गिवन है वो जनरल रिजर्व हमें जो है पार्टनर्स को बांटने हैं। जो हम जनरल एंट्री पास करते हैं कि हम जनरल रिजर्व को बांटना चाहते हैं। रिजर्व और प्रॉफिट जो है इसके अंदर दो हमें अमाउंट गिवन, देखिए बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व गिवन है और प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, तो ये दोनों अमाउंट देखिए, अगर चेक करेंगे अगर हम बेटा जी, तो क्या ये दोनों अमाउंट हमारे ये दोनों अमाउंट हमारे क्या है, हमारे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं या फिर नहीं करने हैं। तो क्वेश्चन लिखा है कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व्स एंड प्रॉफिट। सो लुक एट दिस नाउ बेटा, हमें जो जनरल रिजर्व गिवन है वो है 75,000 के और प्रॉफिट जो है वो 15,000 का गिवन है। ओके, ध्यान रखिएगा बेटा, जनरल एंट्री तो हम पास करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जनरल एंट्री तो हमेशा की जैसे हम पास करते हैं वैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, 90,000 आया। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है इसलिए दोनों आएंगे हमारे। ठीक है, अब ये दोनों आएंगे तो 90,000 आया। 90,000 के अकॉर्डिंग हम निकाल लेते हैं शेयर इनका। देखिए तो गुडविल शेयर निकाल देते हैं। देखिए तो यहाँ निकालते हैं 3/48 के अकॉर्डिंग, और सम जो था वहाँ पर 90,000 था। 3 16 या 48, 16 5 या 90 80, 10 3 6 या 96, 4 2 या 32 एंड 5 या 80। तो 5625 आपका सेक्रीफाइस इसका आ गया। देखिए अब यहाँ करते हैं 90,000 इंटू 1/48। ओके, 316 या ये 30,000 हो गया। इसे करते हैं 61 या 16, 14 16 8 या 128, 12 16 7 या 119। अच्छा, ये थोड़ा सा हमारे देखिए कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे। ये क्या हो सकता है कि मैंने जो है जनरल रिजर्व तो इसके अंदर ले लिया 75 और 15। ठीक है, और इसके अंदर गुडविल नहीं लिया। देखिए ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसमें गुडविल को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। देखिए मैंने गुडविल लिखा था लेकिन यहाँ पे गुडविल का अमाउंट ऐड नहीं किया, तो मुझे यहाँ पे गुडविल को भी ऐड करना होगा। गुडविल अमाउंट 1,50,000 की बनेगा। ठीक है, कभी भी अगर आपका पॉइंट मारा तो समझ जाइए कुछ एरर कमिट हुआ है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। तो कर लेते हैं, देखिए 2,40,000 आ जाएगा। आप बहुत आसानी से आपकी कैलकुलेशन गिर जाएगी और कुछ भी नहीं होगा। देखिए 2,40,000 इंटू 3/48 करते हैं यहाँ पे। देखिए 5, तो 5,000 इंटू 3 15,000 करके देखिए। ठीक है, यहाँ करते हैं 2,40,000 इंटू 1/48, तो ये 5,000 आ जाएगा केवल। ठीक है, अच्छा ये वाला देखते हैं, ये 4/48 है, वही 2,40,000 का अमाउंट लेंगे। तो 2,40,000 का अमाउंट लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5,000 और 20,000 आपका निकल के आ जाएगा। देखिए सम अगर आप देख रहे हैं तो तीनों का बिल्कुल इक्वल निकल रहा है। कि जनरल एंट्री पास करते हैं। देखिए जनरल एंट्री क्या आएगी, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। देखिए यहाँ निकाल देते हैं फटाफट जल्दी से। तो गेनिंग पार्टनर कौन है हमारे पास, देखिए यहाँ पर गेनिंग पार्टनर हमारे एक्स और वाई हैं। तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ कहेंगे बीइंग, और कौन से अमाउंट एडजस्ट किए, गुडविल, रिजर्व, रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स एडजस्टेड, ये लिखा जाएगा। और ये अमाउंट जो हमने कैलकुलेट किए वो यहाँ देंगे। देखिए एक्स और वाई का 15 और 5 आया था, ये 20,000 का बेटा जी हमारे पास ये कैलकुलेट करके आ गया। अब इसमें करना क्या है, हमें इसमें हमें रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है। तो बेटा रिवाइज बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, उससे क्या होगा, हमें पता लग जाएगी पार्टनर्स की कैपिटल में क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, देखिए बच्चे क्या करते हैं कि एज इट इज बैलेंस शीट बना के आ जाते हैं, एग्जाम में वो गलत हो जाता है। देखिए यहाँ बनाते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं यहाँ पर। तो
3 पार्टनर है हमारे पास। ओके, यहाँ पे पर्टिकुलर दिखाएगा। मैं क्यों बना रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मुझे बोला तो है नहीं। ठीक है, इससे क्या होगा बेटा, हमारा इजी रहेगी बैलेंस शीट के आइटम निकालने में, बहुत इजी रहेगा ये। देखिए, तो सबसे पहले क्या आती है इसके अंदर बेटा, कैपिटल। यहाँ पे बाय बैलेंस डी। ठीक है, तो देखिए कैपिटल हमें जो बैलेंस शीट गिवन है इन्होंने, ठीक है, उस बैलेंस शीट में हमारे को कैपिटल गिवन है वो है 1,50,000 और 1,20,000, ये कैपिटल है हमारे पास। ओके, उसके बाद करते हैं, देखिए क्या है इसमें, हमने जो है कुछ करना नहीं है इसके अंदर। ठीक है, प्रॉफिट का सीन कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस जहाँ पे हमें दिया है प्रॉफिट को, हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पे जो आइटम हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे हैं वो नहीं आएंगे। ठीक है ना। अब बात करते हैं एंट्री कौन सी पास की थी हमने, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस की थी, अगर आपको याद होगा। ठीक है, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस। तो गेनिंग पार्टनर का शेयर कितना आया था, देखिए तो हमने एंट्री जो की थी, तुम्हारा एंट्री वो लिख देता हूँ मैं आपको ताकि याद रहे। देखिए क्या था, एक्सेस कैपिटल, वाइस कैपिटल टू जेड कैपिटल, ये था ना। तो देखिए एक्स के कैपिटल में था 15,000। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, यहाँ तक लिखूंगा टू जेड कैपिटल, यहाँ लिखूंगा बाय एक्सेस कैपिटल बाय वाइस कैपिटल। इंटरनेट के देखा नहीं पर बाय होता है, इंटरनेट होता है, टू वाला यहाँ गया, ये यहाँ पे आता है। ठीक है, अब अमाउंट की बात होती है बेटा। देखिए जब मैंने यहाँ पे टू जेड कैपिटल लिखा तो मैं एक्स और वाई का अमाउंट लिखूंगा। जब मैंने एक्स और वाई लिखा तो मैं जेड में कितना अमाउंट है वो लिखूंगा। समझ आ रहा है ना। देखिए कैसे, जेड के अमाउंट में कितना कितनी जनरेशन थी हमारी, देखिए एक्स और वाई की 15 और 5 थी, यहाँ लिखूंगा 15,000 और यहाँ था 5,000। ठीक है, अब x ने कितना दिया था z को, देखिए यहाँ पे 15,000 दिया था, सेक्रीफाइस किया था, गेन किया था ना, और y का कितना था 5,000। समझ में आ गया होगा आपको ये एंट्री जो चल रही है। ठीक है, यहाँ 2 लिखा तो मैंने x और y का अमाउंट लिखा, जब y में दोनों लिखा तो ये चीज़ आ गई। अब देखिए यहाँ पे जो बैलेंस आएगा उसी को कैपिटल को हम बेटा की बैलेंस शीट में लेंगे, क्योंकि और कुछ हमारे पास है नहीं देखिए इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर और कोई आइटम इसके अंदर आने वाला नहीं है। कर लेते हैं, तो ये है 2,00,000 1,50,000 जाएगा आपका 1,40,000 ये लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ है 2,00,000 1,50,000 1,40,000। ठीक है, यहाँ निकालते हैं टू बैलेंस शीट। देखिए 2,00,000 में से 15,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा 1,85,000 आ जाएगा। 1,50,000 5 माइनस करेंगे 1,45,000 आ जाएगा। 1,40,000 ऐसे आ जाएगा, तो यहाँ कुछ है नहीं। ठीक है, अगर आप बैलेंस शीट का टोटल देखें अपने कैपिटल का तो बेटा 4,70,000 है। तो इन दोनों को, इन तीनों का टोटल देखिए, क्या इन तीनों का टोटल भी अभी तक उतना ही आ रहा है, क्या कुछ चेंज हुआ है। देखिए यहाँ पे 1,85,000 1,45,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3,30,000 3,30,000 और 140 कितना हो गया 4,70,000। तो देखिए उतना ही बिल्कुल इक्वल आया। तो जरूरी नहीं कि इक्वल आए, चेंज भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं यहाँ आता हूँ, देखिए रिवाइज बैलेंस शीट, रिवाइज्ड बैलेंस शीट। अब देखिए रिवाइज बैलेंस शीट में जो आइटम थे सबके सब ऐसे देखे जाएंगे इसके अंदर, बस हमारी कैपिटल में चेंजेस आएंगे, केवल इसमें आएंगे केवल कैपिटल के चेंजेस आएंगे, बाकी सारे अमाउंट में ऐसे लिख देंगे इसके अंदर, जो जो अमाउंट उसके अंदर गिवन थे। ठीक है ना। देखिए क्या आएगा यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट एक्स वाई और जेड क्या है 1,85,000 1,45,000 1,40,000, यह आया था 4,70,000। बाकी सारे अमाउंट जो आपके क्वेश्चन में गिवन है वो सारे अमाउंट दीजिएगा, टोटल उतना ही जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। 6 लाख अगर इन्होंने दे रखा है 6 लाख तो 6 लाख का 6 लाख ही आएगा, सारे अमाउंट नोट कर दीजिएगा इसके अंदर जो बचेगा। ठीक है, बस खाली इसमें चेंज रहता है बस, जिसके लिए हमने ये बनाना पड़ा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो देखिए एक बार दोबारा से समझ लीजिए क्या किया मैंने। सबसे पहले तो वही अपना फंडा जो करते हैं गेनिंग और सेक्रीफाइस निकालने वाला, उसके बाद मैंने जो है यहाँ पर देखिए 3 अमाउंट उसने कहा था कि हम जनरल रिजर्व को और प्रॉफिट को बांटना नहीं चाहते हैं, तो नहीं बांटा, इसलिए मैंने इन 3 अमाउंट को गुडविल के साथ चेक कर ऐड कर दिया। ठीक है, 2,40,000 आ गया। 2,40,000 को फिर मैंने तीनों में बांट दिया, उसकी जो सेक्रीफाइस और गेनिंग वाले पार्ट थे बांटे।
तो ये हमारे पास 15,000, 5,000, 20,000, फिर मैंने जनरल एंट्री पास कर दी कि गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो क्या आया था, एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो 15 और 5 और 20 ये हमारी एडजस्टमेंट की एंट्री हो गई। उसके बाद फिर मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों देखने के लिए कैपिटल कितनी हो गई अब। तो देखिए यहाँ पे क्या किया, उसी एंट्री पहले उससे पहले हमने ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे कैपिटल लिखते हैं, लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद बाय एक्सेस कैपिटल बाय वाइस कैपिटल। एक्सेस कैपिटल में जेड वाली अमाउंट आएगी जो हमने जेड को दी है, ठीक है ना, जो जेड ने गेन एक्चुअल में जो सेक्रीफाइस किया है जेड ने, ठीक है, वो हमने अमाउंट यहाँ पे लिख दिया। ये लिखा है बाय एक्सेस कैपिटल बाय वाइस कैपिटल। यहाँ पे लिखेंगे टू जेड्स कैपिटल। तो यहाँ पे एक्स और वाई ने एक्चुअल में कितना गेन किया था वो हमने यहाँ लिखा, यहाँ बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर है हमारा। ओके, उसके बाद रिवाइज बैलेंस शीट, केवल इसमें कैपिटल में चेंज है, जो ये बैलेंस आया था यही कैपिटल है, लिख दिया और ये होगा। तो बेटा ये चीज़ें देखिए, ठीक है, इसी को हमें ध्यान से समझना होगा कि किस तरीके से जो हमें कैपिटल अकाउंट कैलकुलेट करने होते हैं, कैसे निकालने होते हैं। ओके, अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 33। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक चिल्ड्रन द वीडियो फॉर क्वेश्चन नंबर 34, 35 and 36. Okay, and these question are long question are started from here 33. Okay, till then you can pause the video, you can like it, subscribe it and continuously watch it. Okay, if you have any query then I'll sort out, don't worry about that, and write the comment section. Okay, if you have any type of query. Thank you children, thank you so much.